बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? सब खैरियत से हैं? और क्या हाल है सबके? दिस इज वंस अगेन मैम शाजिया, वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू एंड बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 4। तो हमने लास्ट जहाँ ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करने लगे हैं। बायोएनर्जेटिक्स एनर्जी फॉर लाइफ, दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी HSSC 1. Photosynthesis is my today's topic. A brief description about the photosynthesis. कोई हमने कोई अभी डिटेल नहीं देखनी, वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। इसकी डिस्कस डिटेल भी डिस्कस करेंगे, बट दिस टाइम जस्ट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ व्हाट फोटोसिंथेसिस इज. सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल clip art for photosynthesis. Now look at this. This is a plant and it's going to take the sunlight, light energy from the sun and taking in carbon dioxide in water and giving out oxygen. So simply what photosynthesis is, it is actually the conversion of light energy into chemical energy. I'm going to repeat, you need to write this term. This is a statement that photosynthesis is the conversion of light energy into chemical energy. Let's take another example for photosynthesis and how you are going to define. It is actually the plant, and first of all, we should know this thing that sun is the ultimate source of energy in this world, and light energy and plants. The plants are the only and only organism that are capable of absorbing this energy and then converting that into form of energy which is usable, which is helpful for us and for the rest of the world as well. So what they are doing, they are absorbing the carbon dioxide from the atmosphere, then water from the soil, and both of these molecules are inorganic and low energy small compounds, right? And both of them are going to convert into a bigger one, a carbohydrate and energy rich compound. And who is going to do this? This is the plant, and that process is, by the way, called as the photosynthesis. So you need to write two things for the definition for the photosynthesis, that it is a process which is going to convert the light energy into chemical energy. And secondly, the most important thing is that photosynthesis is responsible for converting small inorganic energy rich energy low energy compounds into high energy compounds, and that high energy compound are basically the organic compounds. This is what you need to define photosynthesis. So a very, a familiar equation for you people for photosynthesis, this is carbon dioxide and water. And in the presence of sunlight and chlorophyll, both of these molecules are going to convert into glucose and oxygen as a byproduct. तो समझ रहे हैं यहाँ तक? किसी को कोई confusion? मैंने सिर्फ definition ये दी है अभी तक फोटोसिंथेसिस की, जो आपको पहले भी पता थी, मगर अब आपने इन टर्म्स को यूज़ करते हुए इसको डिफाइन करना है. And then have a look on the balanced equation of for photosynthesis. This is carbon dioxide, 6CO2, 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is going to provide you, or to provide the living system, glucose and oxygen, which is the byproduct of this reaction. Okay. Photosynthesis. So, as far as photosynthesis, whenever you are going to discuss photosynthesis, redox reaction, you cannot forget that term for redox reaction. Now, in chemistry, you have already learned this term, redox, which means reduction and oxidation. So, what is reduction? As far as chemistry is concerned, आप लोगों को आना चाहिए. Reduction is addition of electron or gain of electron, and addition of hydrogen and removal of oxygen is called as reduction. And oxidation is actually the reverse of that reduction, which means loss of electron, loss of hydrogen and gain of oxygen is called as reduction. So अगर हमें दोनों oxidation और reduction की definition आती होती है, तो फिर तो हम इसको बहुत आसानी से डील कर सकते हैं. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. वाटर इज गोइंग टू रिड्यूस इट सेल्फ. कैसे करेगा ये इसको बेसिकली तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, खुद रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा. कैसे? इट इज़ गोइंग टू रिमूव हाइड्रोजन. ठीक है ना, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगी.
हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगी। जब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो इस वाटर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन जाएगी कहाँ? इट इज़ गोइंग टू ऐड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर will result in the reduction of carbon dioxide, and the result of carbon dioxide reduction is called as carbohydrate। ठीक हो गया, यानी कि आपने देखा एक ही टाइम पे एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हुई और एक मॉलिक्यूल में रिडक्शन हुई। दिस व्हाट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर एक रिड्यूस हो रहा है एक रिएक्टेंट तो दूसरा लाजमी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। So this is what is called as reduced reaction। एक टर्म यहाँ दी है लियो, loss electrons oxidation, and GER GER gain electrons reduction। तो अगर आपको मुश्किल लगता है याद करना, although it's not a big deal now for you are grown up girls, अब आपके लिए कोई इशू नहीं है ये। So let's go of further detail, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ये रिडक्शन होगी, कैसे ये ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है। अभी आगे चलते हैं रोल ऑफ लाइट की तरफ। Then is the role of light. Role of light. Role of light. Gee, so next is the role of light in plants. So what is the importance of light, right? So sunlight, as we all know, that is the only source of energy, and the light in the sun is actually an electromagnetic radiation, or it is a radiant form, यानी कि radiations की form में है ये। ठीक है, so जो electromagnetic spectrum होता है वो तमाम तर lights की range को visible, obviously मैं आगे बताती जाऊंगी आपको, visible light range को हम कहते हैं electromagnetic spectrum या electromagnetic radiations। सो रोल ऑफ लाइट में पहले तो एक तो हम बार बार यूज़ करेंगे अब रेडिएशंस। ठीक है ना, सनलाइट या लाइट कह रहे हैं उसको, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में है। तो एमिशन है या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब या वेव्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल करेगी, या पार्टिकल की फॉर्म में कोई ट्रैवल करे तो हम उसे कहते हैं रेडिएशन। Radiation is the energy that comes from a source and travels through space at the speed of light. And energy has an electric, okay, कब आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहोगे? किसी भी रेडिएशन में अगर उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो जनरेट कर सकता हो, और वो रेडी अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर ले करे, और उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी हो, मतलब वो ट्रैवल कर सकता हो थ्रू द मीडियम इन अ डिटेक्टेबल मैनर, तो हम उसे कहते हैं रेडिएशन। सो रेडिएशन इज एनर्जी दैट ट्रैवल्स एंड स्प्रेड्स आउट एज इट गोज। तो आपको यहाँ तक ये बात पता चल गई कि रेडिएशन कोई ऐसी वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, वो ट्रैवल भी कर सकती है और ट्रैवल करके इधर उधर फैल भी सकती है। इसको हम कहते हैं, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं ईएम रेडिएशंस फॉर एग्जांपल। अब जो बल्ब से लाइट आ रही है, लैम्प से लाइट आ रही है, वो भी एक टाइप ऑफ रेडिएशन है। और जो रेडियो वेव्स आपके रेडियो स्टेशन से जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं और हम रेडियो अपना ऑन करते हैं और हमें कनेक्ट हो जाते हैं विद एफएम जो भी, तो वो रेडियो वेव्स हैं। अब ये दो तरह के वेव्स हैं, लाइट रेडिएशंस एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, लाइट रेडिएशंस ऐसी हैं कि आपने महसूस किया ना कि जब लाइट जलती है तो आप कहते हो बल्ब गर्म है, उससे करीब हाथ करते हो आपको हीट फील होती है, इट मीन्स कि वो आपके ऊपर कोई इफेक्ट डाल रही है। लेकिन रेडियो वेव्स का क्या होता है, वो रूम में इधर उधर रेडियो वेव्स आ चुकी हैं, वो हमारा रेडियो कनेक्ट कर रहे हैं, मगर हमें उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हम, है ना। तो ये कहलाती है रेडियो वेव्स। इसकी एनर्जी इतनी लो होती है कि ये हम इसको महसूस ही नहीं कर पाते, हैज़ नो रोल ऑन अस। ठीक है, तो ये याद रखें, हम उस रेडिएशन से कंसर्न है जिसका कोई ना कोई लिविंग सिस्टम पर इफेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और विजिबल लाइट उसी रेंज का पार्ट है। विजिबल लाइट वो रेंज है, ईएम रेडिएशन है, जिसका हम लिविंग सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होता है। एक तो ये कि आप इसकी वजह से सब कुछ देख पा रहे हो, जो भी आप दिन में ऑब्जेक्ट देख पाते हो। अब दिन में वो विजिबल लाइट एब्सेंट हो जाती है रात में, तो वो हम नहीं देख पाते कुछ भी, लेकिन दिन में वो प्रेजेंट है तो वी कैन सी एवरीथिंग। सो विजिबल लाइट रेंज हैज़ अ बिगर रेंज ऑफ लाइट। हाँ, ऑल दो के जब आप ओवरऑल लाइट्स देखते हो, तमाम तर वेव्स देखते हो, तब इसका जो रेंज है वो बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान में विजिबल लाइट रेंज प्रेजेंट होती है। इसके नीचे अल्ट्रा वायलेट है, ऊपर देख रहे हो आप इंफ्रारेड है, राइट। अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट आएगा, और रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा। ये रेड आप नजर आ रहा है आपको, रेड के बाद इंफ्रारेड, यहाँ वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है,
और इंफ्रारेड के ऊपर माइक्रोवेव्स हैं, फिर रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। अब ये सारी रेडिएशंस कैसी हैं? ये सारी रेडिएशंस रेडियो, ये सब वो उस टाइप की रेडिएशन हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिसका लिविंग सिस्टम के ऊपर इस तरह का डायरेक्ट रोल नहीं होता। हाँ, हिडन रोल्स, हिडन इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। विजिबल लाइट रेंज इतनी इंपॉर्टेंट है, एवेपोरेशन इसकी वजह से हो रही है, फोटोसिंथेसिस इसकी वजह से हो रही है, हम कपड़े बाहर धो के डाल देते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, ये विजिबल लाइट रेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसमें इतनी हीट है और उसमें इतनी पावर है कि वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ द रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। अब ये पूरा स्पेक्ट्रम, जब 7 कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं तो हम उसको स्पेक्ट्रम कह देते हैं। आपको याद होगा कहीं 6 7 में यू यू हैव लर्न वेब गॉयर, राइट? दिस इज वेब गॉयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस इज वेब गॉयर। ठीक है, तो वेब गॉयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 400 एंडिंग अप टू द 700, ये पूरी लाइट रेंज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, जो विजिबल लाइट कहलाती है, और जो कि हम जिसकी वजह से हम देख भी पा रहे हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी हो पा रही है, और जिसकी वजह से जो भी लाइट के काम है वो सब हो पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है जी रोल ऑफ लाइट, द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड रेडियो। हाँ, अब एक भी बता तो चुकी हूँ खैर मैं आपको कि उसमें एनर्जी कम होती है, बट वाई दे हैव लेस एनर्जी? बिकॉज द रेडियो वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ्स, राइट, एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज, लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज। ठीक हो गया? जबकि जो दूसरी लाइट होती है उसकी वेवलेंथ्स शॉर्टर होती हैं और फ्रीक्वेंसी उनकी हायर होती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, सिर्फ बताना चाहती थी कि रेडिएशन क्या चीज़ है। आपने सुनी तो है ना ये चीज़ें, टर्म्स पढ़ते भी हैं, मगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम जिस कंसर्न हैं विद द EM रेडिएशन स्पेक्ट्रम। Now this is the color of the visible light spectrum. ये वो सारी रेंजेस हैं, अपनी सब याद करनी है। इनमें वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, और मगर फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट है। ठीक है, ये अमंग द विजिबल लाइट रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम इसको रेडियो वेव्स के साथ कंपेयर अभी नहीं कर रहे हैं। और रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ऑब्वियसली लेस देन द रेडियो वेव्स, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के साथ साथ तभी तभी हम इसको ख़तरे का निशान में लाल रंग लगा देते हैं ना, बिकॉज वो एकदम से नज़र आती है, बीइंग द लॉन्गर वेवलेंथ, दूर से नज़र आ जाता है रेड कलर, और मगर इसकी फ्रिक्वेंसी लेस होती है। तो ये सब चीज़ें आपने सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके जी, कलर ऑफ द विजिबल लाइट एक और दफ़ा देख लेते हैं इसको। सॉरी, ये जो है रेड कलर था, इसकी हमने बात की थी कि वेवलेंथ इसकी लॉन्ग होती है, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होती है। इस रीजन में जाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी शॉर्टर होती जाएगी, इस रीजन में आते रहेंगे फ्रीक्वेंसी बिगर होती जाएगी और वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी। खैर इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप आगे चलें। वैसे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि विजिबल लाइट रेंज की ये वैल्यूज़ हैं और इस तरह ये फंक्शनल है। ओके, देन इज एक्शन स्पेक्ट्रम। Action spectrum क्या चीज़ है? An action spectrum is a graph of the rate of biological effectiveness plotted against wavelength of light. It is related to absorption। मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ सारी टर्म्स। An action spectrum shows all the colors of light that are used in photosynthesis। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम उससे कंसर्न है कि उन तमाम तर लाइट रेंजेस के साथ जो कि आप फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हो। Now let's have a look on that graph. That graph is showing you two different lines, right? नीचे जो आपको ग्राफ में जो पीक्स नज़र आ रही हैं, शार्प पीक्स, एक दो तीन है। लेट मी टेक अ पॉइंटर फर्स्ट, देन विल शो यू कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ये एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, फिर ये एक पीक है। द लाइटर ग्राफ इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, यानी कि हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कोई ना कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि अब आपको मालूम है कि लीव्स ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, वाई? बिकॉज ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ्स दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लीव एंड ग्रीन इज रिफ्लेक्टेड बाय देम। ठीक हो गया ना? अब उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, जो एब्जॉर्ब कर ली वो गुम हो गई। ठीक है ना, वो कलर्स गुम हो गए। अब ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसका मतलब इस जो तो कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से वो आइडिया होगा कि क्लोरोफिल ए रेड को एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लू को एब्जॉर्ब कर सकता है, इंडिगो को एब्जॉर्ब कर सकता है, मगर ऑब्वियसली वो ग्रीन और येलो के शेड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अपना कलर इन्हीं दोनों का मिक्सचर है।
सेम इज़ द केस विद द कैरोटिनॉइड, वो येलो से ऑरेंज के शेड्स हैं, तो वो येलो और ऑरेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। और बट व्हाट अबाउट द एक्शन स्पेक्ट्रम? अब एब्जॉर्प्शन तो आप समझ गए, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एनर्जी से किया क्या? उस एनर्जी से फोटोसिंथेसिस बना ली, सॉरी ग्लूकोज बना लिया, फोटोसिंथेसिस हुई मतलब। Means action spectrum is actually the production of photo, the amount of photosynthesis, right? Action is actually किससे आप करना है? The effectiveness of the wavelength for producing glucose, the effectiveness of the wavelengths for continuing the process called photosynthesis. तो इस एक ग्राफ में आपको दोनों नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये ज़्यादा वाइड है, ठीक है ना, एक ही पीक आई है ये वाली, और बाकी ये वाइड है। ये सारी जगह में एक्शन हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है कि इस रीजन में इसकी वजह से हो रहा है, इस रीजन में इसकी वजह से हो रहा है, इस रीजन में इसकी वजह से। अब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी तो इस रीजन में एब्जॉर्ब भी नहीं करते, वो तो कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, और इस रीजन में फिर हमें एक वाइड पीक नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ द ongoing photosynthesis। ठीक हो गया, यानी कि नीचे वाला ग्राफ is showing you the absorption spectrum and this one is showing you the action spectrum। जितनी absorption होगी उसी की बेस पर एक्शन होगी, मीन जितनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और वो उसी के मुताबिक फिर फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल है। ठीक हो गया, तो ये दोनों ग्राफ्स हमने एक साथ डिस्कस किए ताकि आपको पता चल सके कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या सीन है। ओके, दिस इज वंस अगेन द एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप देख रहे हो इसकी जो पीक है वो वाइड है, और जो वैली है वो भी ब्रॉड है, वो भी नैरो नहीं है, और वंस अगेन इसकी पीक भी ब्रॉड है। ठीक है, यानी कि इस सारे रीजन में इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस होती रहती है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, फिर आस्ता 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 आस्ता, मगर ज़ीरो नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस होती रही, एक्शन स्पेक्ट्रम होता रहा यहाँ पर भी, क्योंकि इस रेंज में आपको पता है ग्रीन और येलो के रेंज में क्लोरोफिल्स जो हैं वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन इसका मतलब है कि इस रीजन में कैरोटिनॉइड्स फिर फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो भी कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, वो एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं मगर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकते, तो फिर वो क्लोरोफिल ए को ही डोनेट कर देते हैं अपनी एनर्जी। दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्शन स्पेक्ट्रम। अब बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन इस पेज पे लिखी हुई है, एन एक्शन स्पेक्ट्रम शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, मतलब डिफरेंट कलर्स, effectiveness of different wavelengths of light at bringing about photosynthesis। ठीक है, तो ये सारी wavelengths की वो कलर्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। यहाँ थोड़ी कम हुई है, यहाँ फिर से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी इन दो शेड्स पे हाईली एब्जॉर्ब्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फिर जी वही वाली बात बता देती हूँ दोबारा, क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट्स दैट absorb रेड एंड ब्लू wavelength and participate in photosynthesis directly. Carotenoid, they participate in the photosynthesis directly. And carotenoids are your orange and yellow pigments that can pass on excited electrons to use in photosynthesis. There is the end of the role of light. I'm hoping कि आपको बात समझ आ गई है, नहीं समझ आई call me, you can write me in the comments. We will meet again in the next lecture. Up till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।